So introduce yourself. Uh, Firstly, good evening, ma'am. Hello, I am Mustaqim Abdul Rashid Patel. I belong to a Western Maharashtra from Karat town, Satara districts. I have completed my primary and secondary education in Maharashtra State Board. After that, I am graduate with the master degree. I am graduate with the BTech degree from the degree in agriculture engineering from Mahatma Phule Krishi Vidyapit. After that, I have earned a master degree with specialization in agribusiness management with distinction from Mumbai University. Uh, while I am pursuing the ABM, I have successfully completed my summer training program in RCF in specialization in logistics. My father is a retired agriculture officer, and I have two younger sisters which have doctorate in own field. This is all about me. Thank you for giving opportunity to introduce myself. Thank Okay, so you have not worked anywhere? Have you worked anywhere? you. No, currently I'm not I have not work experience, ma'am. Yes, that's what I'm saying. So you have completed your BTech when? Mahatma Phule Krishi Vidyapit, ma'am. I think when did you complete it? 2019. 2019. So when did Yeah. you complete your this agribusiness management? Muskim, your video was paused. Okay, now it's okay. Yeah. Am I audible to you? Yes. Am I audible to you, ma'am? Yeah, you're audible to me. So when did you complete your like post graduation, like agribusiness management? February 2023, ma'am. Okay, was there a gap in between? 1 year गैप में मैम मैं इसके स्टडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की स्टडी करता था मैम 2019 to 2020. Okay, so 1 year gap was there. Fine. Yeah. Yeah. Okay. So why do you want to go in for RCFS? एक्चुअली आई एम बेसिकली मैम एग्री माई एग्रीकल्चर बैकग्राउंड एंड मैंने बचपन से मतलब कुछ फर्टिलाइजर्स देखे जिसके अंदर आरसीएफ का भी काफी नाम था. तो उस रिगार्डिंग में एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग में को मार्केटिंग मतलब कुछ आगे करना था तो उस रिगार्डिंग में आरसीएफ में आया Okay. Anything else? था. No. Okay. So how do you think you're suitable to be like selected for this position? अकॉर्डिंग टू आई एम से दैट कि एग्रीकल्चर में जैसा मैंने बचपन से देखा है कि एग्रीकल्चर में मार्केटिंग और एग्रीकल्चर में कुछ नया इम्प्रूवमेंट करना है. तो जैसा कि ये बड़ी कंपनी आरसीएफ या कुछ जैसे सेक्टर्स है यहाँ से इनके लिए मैं फार्मर्स के लिए कुछ कर सकता हूँ और जैसे मैं इसी का यूज करके अपने फर्टिलाइजर्स का भी नाम जैसे फर्टिलाइजर्स कंपनी इसके लिए भी कुछ मैं नया इनोवेटिव काम करना चाहता हूँ मार्केटिंग में ताकि पब्लिक सेक्टर में और गवर्नमेंट में और प्राइमरी किसानों को भी हर हर तरीके से फायदा हो जाए. Okay. अच्छा इसमें ना मस्किन आई जस्ट वांट टू टेल यू कि इंट्रोडक्शन में ना आपको यू डोंट नीड टू मेंशन योर फैमिली. बाद में जैसे आपने मेंशन की ना तो फैमिली मेंशन करने की जरूरत नहीं है. या ऑब्वियसली आपका आपने बोला कि आपने आरसीएफ में अपनी समर इंटर्नशिप लॉजिस्टिक्स में कंप्लीट किया दैट इज इनफ. तो आपसे फिर ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट डू मीन बाय लॉजिस्टिक्स या क्या किया आपने वहां पर. तो आपकी जो समर इंटर्नशिप थी कितने टाइम की थी वो? 2 मंथ्स के लिए मैम. अच्छा 2 मंथ्स की थी वो. आपने एग्री बिजनेस मैनेजमेंट जब आप कर रहे थे तब आपने किया यस है मैम. ना? ओके, यस. तो वहां तक खत्म कर सकते हो आप उसको. ठीक है. then you can then when I asked you ki when like what is your suitability for this, when I asked you what is the suitability for this, then you could have said that technically I'm suitable because I've done my BTech in agriculture and then your masters you have done the business management of agriculture also, agri business management you have done, no? So यस. that is why you are capable to be selected as management trainee. Okay, because you have done the management aspect also and the technical aspect also. Fine. यस. So here suitability you can show with both the things. And then I asked you one more question. Suitability me you can give your personal traits also, that what kind of a person you are. Like you are team player or you lead you leadership qualities or whatever qualities you want to, whatever qualities you have, you can share there also in यस. suitability. Okay. And यस. one more thing, I asked you one more thing, that why do you want to go in for RCF? हाँ. Okay, but you just said that you wanted to go because you wanted to like go into, you have done your degree in agriculture and you want to go there.
So you can here you can say some features of RCFL, what they are doing actually. Okay, what kind of products they have, what are they doing, and what kind of organization, like what kind of work culture they have, something like this. You can read it, the work culture and all that in RCFL, and then pick up some positive points there and keep it, put it here ओके, for जैसे RCFL. जैसे Huh? कुछ दे सकते हो, मैं जैसे क्या बोल सकता हूँ मैं उनको इस रिगार्डिंग? You can say that they have a good work culture, and like work life balance is there, and in this company, and moreover it is quite concerned with what I have studied. Okay, and यस, okay, and it is a public sector unit and all that, you can say. So you can like devise some points, like I am telling you some points, but it is not necessary that you use these points. I'm just giving you an example. यस, Okay, because if we give example to everybody, everybody will have a common answer. So we would want you to devise answer for that. यस, Okay, otherwise वहाँ interview में जाके सब common answer बोल रहे होंगे. So it is up to you how you will say. Okay, fine. ये और एक मैम ऐसी बात थी कि मतलब मैं ये कल से स्टडी कर रहा था, तो मैं थोड़ा इसी दो चीज में कंफ्यूज था कि अगर वो पूछेंगे कि मैं आप यह कंपनी में क्यों आना चाहते हैं फर्स्ट थिंग, और अगर हम्म. हम आपको इस रोल के लिए अगर हम आपको सिलेक्ट करते हैं तो आप हमारे लिए क्या कर सकते हो, तो इसके मैम कुछ बेसिक्स आंसर में कंफ्यूज हो रहा हूँ। जैसे मैं ये बोलूंगा कि मैं एग्रीकल्चर से बिलोंग करता हूँ और मैं बचपन से देख रहा हूँ, ये मैम सही हो रहा है क्या? मेरे पास बचपन से तो जरूरत नहीं है. यू कैन से आई सिलेक्टेड टू गो इनटू बी, आई हैव डन बीटेक इन एग्रीकल्चर बिकॉज आई वाज इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड. ओके, ठीक है, ये आपने एग्रीकल्चर में तो इसीलिए किया है ना क्योंकि आपका इंटरेस्ट था, अदरवाइज क्यों करोगे एग्रीकल्चर, कुछ और चीज में करते बीटेक आप, आपने एग्रीकल्चर में किया है. यस, ठीक है, उसके बाद आपने बिकॉज यू वांटेड टू गो इनटू मैनेजमेंट, दैट इज व्हाई यू डिड योर बिजनेस मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर. हाँ, वो डन, तो मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए अप्लाई कर रहे हो ना आप. हाँ, ठीक है, so as a management trainee, I and you have done your degree in BTech, so you should know the technicalities also involved in that, यस, not just management. Although the technicalities are involved in that, you will be knowing, no, in agriculture. या Okay. अब मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ, why are fertilizers necessary? fertilizers, according to your geographical situation and climate change, soil fertility and soil texture are differently changes at that time. तो जैसे कि हमें क्रॉप की रिक्वायरमेंट और वर्ल्ड का पॉपुलेशन मेंटेन करना है, तो कुछ क्रॉप जो है या कुछ रिक्वायरमेंट है उनको बढ़ाना चाहते हैं, तो बढ़ाने के लिए जैसे क्रॉप में कुछ पॉइंट NPK की जरूरत होती है, तो उस अकॉर्डिंगली अगर हम उस क्रॉप को उतना देंगे तो हमारा जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो बढ़ सकता है, और हमारी सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल कंडीशन और वेदर के लिए भी वो सुटेबल होके हम उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई यूज फर्टिलाइजर इन मेजर क्रॉप्स और फर्टिल फॉर। तो इसमें इतना बड़ा आंसर देने की जगह आप छोटा सा इसको दे सकते थे, टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, to increase the nutrients, NPK, whatever you were saying, you can use the full form of that. Okay. And to increase that, you have to do it because the soil loses its fertility as when we reap it and all that. No, it loses its so some replenishment is required in it. It loses the nutrients. So it has to be, the nutrients had to increase in the soil. So we add fertilizers for that. है ना? Okay, so you could have answered it in a short way. Okay, sort two, three lines. Okay, although you meant this only in your whole discussion, you meant this only, but only two lines you could have said over there. Fine. Uh, uh, just a minute. Okay, yeah. Okay, continuing it. Okay, I want to know what are the government policies for fertilizers, like new government policies, if are there, if you are aware of some new government policies which are there. Basically, I know that the different scheme and policies are here, but I know that the DBT, this direct benefit transfer for fertilizers. Second thing is नैनो कोटेड एरिया, नीम कोटेड एरिया, जो सेकेंड जो अपनी अभी पॉलिसी स्टार्ट है नीम कोटेड एरिया की, और डीबीटी ट्रांसफर में जो है मैम, जो कंपनीज है जैसे पब्लिक सेक्टर या जो भी नाइट्रोजन जो बनाते हैं कंपनी, उनके लिए 98% जो सब्सिडी है वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, जिस वजह से कि जो अपने यूरिया का जो प्राइस है वो गवर्नमेंट की तरफ से सेट हो जाता है, वो डायरेक्ट ट्रांसफर। एंड सेकेंड थिंग जो है नीम कोटेड एरिया, जैसा कि यूरिया जो बनता है वो NH3 से बनता है और वो नेचुरल गैस से बनता है, तो वो होलाटाइल होता है, तो नीम कोटेड यूरिया से उससे बेनिफिट ये हो जाएगा कि वो ज्यादा होलाटाइल नहीं होगा और अकॉर्डिंग टू क्रॉप वो धीरे 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 उनमें
सोल्यूबल होके वो क्रॉप के लिए बेनिफिशियल होगा. तो देर आर द टू बेस्ट currently schemes for Indian governments for fertilizers. No, can you tell me the challenges faced by the agriculturists in India? Yes, challenges faced by the agriculture in India. एग्रीकल्चरिस्ट मतलब लोगों को क्या, लोग जो एग्रीकल्चर करते हैं उनको क्या चैलेंजेस फेस होते हैं इंडिया में? फर्स्ट जो है लैक ऑफ डिफरेंट क्लाइमेटिक चेंजेस. सेकंड लैक ऑफ नॉलेज. थर्ड जो लैक ऑफ टेक्नोलॉजी. फोर्थ थिंग इज fourth is the lack of marketing strategies, and then you don't know about that ki how will be the market price in the other side and our product price. So these are the basically lack of India in this knowledge. That Okay, so Muskim, like these answers were okay, these were good, but एक चीज मैं आपको बोलना चाह रही हूँ कि जो आपने भी स्कीम्स बताई थी, ठीक है, मैंने आपसे पूछा था कुछ नई स्कीम्स जो है, तो आपने उसमें इतनी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है उन स्कीम्स को, आपने बस बताना है कि ये स्कीम्स हैं, okay. ठीक है। अगर कुछ एक्सप्लेनेशन करना होगा देन दे विल आस्क अनदर क्वेश्चन विद यू, ठीक है। तो आपको Yes. उतना ही करना है कि कहाँ तक जितना, तो यू नीड टू कीप योर आंसर्स प्रिसाइज, ओके, एंड पॉइंट वाइज, यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन द पॉइंट्स टू मच, Yes. ओके, क्योंकि जब आप एक्सप्लेन करने लगते हो तो वो फिर वो बैबलिंग जैसा लगता है कि अब आगे करें, ऊपर से जितना ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा फंसोगे फिर क्वेश्चंस में, आंसर्स में। Yes. उतना टू द पॉइंट आंसर करो, प्रिसाइज आंसर्स दो, टू द पॉइंट दो। अगर उनको किसी पॉइंट को एक्सपैंड करना होगा कि हाँ इस पॉलिसी, अगर मैं आपसे कुछ स्कीम पूछ रही हूँ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो यू जस्ट नेम द स्कीम्स। हाँ, अगर ज्यादा एक्सप्लेनेशन देनी भी है तो वन लाइन में एक चीज एक्सप्लेन कर दो, Okay. ठीक है। अगर आपको एग्जैक्ट नेम नहीं पता है उस स्कीम का तो जस्ट एक्सप्लेन इट इन वन लाइन, ओके, बट Yes. डोंट गो इन टू मेनी सेंटेंसेस इन एक्सप्लेनेशंस, ओके, अदरवाइज इट विल बी प्रॉब्लम। फाइन। एक मैम और एक बात थी. हाँ हाँ, जो पहला इंट्रोडक्शन पार्ट है मैम, उसके अंदर मैंने जो बताया उतना काफी, या मेरे कॉलेज के बारे में या मेरे प्रीवियस जो यूनिवर्सिटी उसके बारे में कुछ मैं ऐड कर सकता हूँ वो नहीं बेटर? नहीं उतना ही चाहिए, बट हैव यू डन एनीथिंग, कोई इवेंट मैनेजमेंट, कोई अवार्ड्स मिले हो तुम्हें, या कुछ कल्चरल में पार्टिसिपेट किया हो, या कुछ इस तरह का कुछ किया है, कोलैबोरेटिव वर्क किया हो, ग्रुप में काम किया हो, कोई नया प्रोजेक्ट किया हो? हाँ, प्रोजेक्ट एक किया था मैम उसी. किस किस में किया था प्रोजेक्ट? इसी अंडर एक मैं बीच में जैसे मैं स्टडी कर रहा था तो एक नाइट्रोजन का एक सेंसर है ऑस्ट्रेलिया का, ग्रीन सीकर क्रॉप सेंसर, जो इंस्टेंटली क्रॉप में कितना नाइट्रोजन ये बताता है. तो इस अकॉर्डिंग में मैंने एक प्रोजेक्ट में काम किया था कि हाउ विल बी बेनिफिशियल फॉर द क्रॉप एंड नाइट्रोजन यूज. लेकिन मैंने इसको यहाँ पे नहीं बताया क्योंकि ये तो एक रिसर्च का पार्ट हो रहा है, फिर वो कहेंगे नहीं, कि वो कहाँ बीटेक में किया था आपने? ने बीटेक की बात किया था मैम. मैंने कैसे एक सोशल काम चल रहा था उसी के अंदर मैंने कुछ 2 मंथ्स का प्रोग्राम था तो उसे ज्वाइन किया था. अच्छा, 2 मंथ्स का प्रोग्राम आपने ज्वाइन किया था कोई? यस यस. ओके, बताने को बता भी सकते हो दैट यू हैव डन दैट, बट वो कोई यहाँ पर वो इतना ज्यादा उसका वो नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग कि आपने कॉलेज टाइम में कुछ ऐसे कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज का मतलब होता है तो आपकी लीडरशिप क्वालिटीज आ जाती हैं। अगर आपने कुछ कोलैबोरेटिव वर्क किया हुआ वहां पर तो आपकी टीम बिल्डिंग क्वालिटीज आ जाती हैं। तो और अगर आपने कल्चरल स्पोर्ट्स में तो ऑलराउंडर की तरह आपको आप प्रोजेक्ट कर सकते हो अपने आप को, कि आपने कुछ वहां पे मे बी चाहे इंट्रा में या इंटर स्कूल में पार्टिसिपेशन किया कॉलेज लेवल पे या कुछ ऐसे। तो अगर कुछ ऐसा आपको लगता है देन यू कैन ऐड दोज थिंग्स। अदरवाइज सिंपल हॉबीज ऐड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वैसे ऑल्दो यू कैन ऐड बिकॉज यू आर अ फ्रेशर ऑल्सो, लाइक यू जस्ट डन योर पोस्ट ग्रेजुएशन, सो यू यस. कैन ऐड दैट, बट बहुत ज्यादा कुछ उसमें आप ऐड नहीं करोगे अगर आपको अवार्ड्स नहीं मिले हैं किसी चीज में ना। और स्ट्रेंथ वीकनेस ऐड कर सकता हूँ उसमें? सी वीकनेस तो बिल्कुल ऐड नहीं करनी है, क्योंकि इसमें जब हम आपसे इंट्रोडक्शन पूछते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपसे इंट्रोडक्शन पूछ रही है, तो उसमें आपको अपनी सूटेबिलिटी बतानी होती है बेसिकली, चाहे वो आपकी टेक्निकल है, मतलब इनडायरेक्टली वो आप अपनी सूटेबिलिटी ही बता रहे हो कि आपकी स्टडीज क्या रही हैं, आपने अपना कैसे बिताया वो चीज, और मतलब पूरी स्टडीज में किस तरह का आपने काम किया हुआ है, ठीक है। यस. स्ट्रेंथ्स आप फिर भी बता सकते हो, बट नॉट एज दिस, यू कैन जस्ट से आई एम दिस काइंड ऑफ अ पर्सन, ओके, फाइन, मतलब यू कैन ऐड योर स्ट्रेंथ्स देयर बट नॉट वीकनेस, ओके, फाइन, ओके, ठीक ठीक है है, मैम. फाइन, ओके, थैंक यू मैम. ओके।